ब्राजील के बेलिस शहर में आयोजित यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 इस वर्ष बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 35% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और वैज्ञानिक कहते हैं कि अब पूरी परिस्थिति एक खतरनाक टिपिंग पॉइंट के करीब है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे नैतिक विफलता करार देते हुए चेतावनी दी है कि जीवाश्म ईंधन उपयोग मानवता को गलत दिशा में ले जा रहा है। ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार जलवायु संकट का समाधान केवल नीतियों और तकनीक में नहीं बल्कि मानव चेतना के परिवर्तन में छिपा है। बाहरी पर्यावरण का असंतुलन वास्तव में अंदर के असंतुलन का परिणाम है। COP30 में ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय टीम सक्रिय रूप से मौजूद है। इस टीम में सिस्टर मॉरिन, बीके कैन, बीके बुरहान, फ्रांसिस, कैरोलीन, अनन्या, नॉनी, लुसियाना, गोलो, सोंजा, मेडेलिना, जोस, रिकार्डो सहित कई अनुभवी सदस्य शामिल हैं। ये सभी विभिन्न देशों से आए हैं और आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा पर्यावरण संवाद को गहराई देने का कार्य कर रहे हैं। Hello, welcome and greetings from the climate conference in Belém, and we are right in front of the main entrance, and Brahma Kumaris is represented here with a team of almost 15 people. And inside the climate conference, the negotiations have started 2 days ago, and there's a huge agenda, almost 140 topics ranging from financing to the national determined contributions and the promises of the countries to curb climate change. We are here in the middle of the Amazon, and the Amazon are also called the green lungs of the world, and the Amazon is dying right now in front of our eyes. Scientists estimate that almost 40% of the Amazon are either cut or have been seriously deteriorated, and urgent action is needed to preserve the Amazon and preserve the world climate and the future of humanity. That's why the Brahma Kumaris is here. And we are almost going since the last 15 years to all climate conferences since Copenhagen 2009. And we have an exhibition inside the climate conference. We have many programs, press conferences, and our sister Maureen is also here, very active in the field of interfaith and Talanoa dialogue. And in a couple of days, Sister Genti will come, and they will have programs inside the COP, press conference inside the COP, and we're trying to inform people about lifestyle change, about changing the mindset to be in harmony with the self and be in harmony with nature, have a vegetarian or plant-based diet, use renewable energy wherever possible, and look into your personal lifestyle. How can I live in harmony with nature, with the environment? And we believe meditation is a very powerful tool and helps us to get these lifestyle changes implemented, to get this change in mindset implemented, and that's why we are here, and we hope our presence makes a difference and we can send good vibrations and thus also help to bring science and spirituality together. Thanks very much and Om Shanti. ब्रह्मा कुमारीज की ओर से इस पूरे वैश्विक प्रयास का आध्यात्मिक मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ और यूएन में ब्रह्मा कुमारीज की रिप्रेजेंटेटिव बीके जयंती दीदी द्वारा किया जाता है। वे हमेशा विश्व समुदाय में शांति, चेतना परिवर्तन और सतत विकास के संदेश को आगे बढ़ाती हैं। COP30 की यह टीम भी उनके आध्यात्मिक नेतृत्व और मार्गदर्शन की भावना को आगे ले जा रही है। टीम द्वारा स्थापित प्रदर्शनी केंद्र संवादों, ध्यान सत्रों और इनर रेजिलियंस के अभ्यासों का केंद्र बन चुका है। Activism based on inner values and love has a far greater and lasting impact. People and nature and all living beings respond to loving vibrations. Decisions based on respect and care for nature will bring a sustainable future. इसके साथ ही बीकेज ने प्री कॉप कार्यक्रमों में आर पावर, आर प्लैनेट जैसे रिट्रीट और विश्वविद्यालयों में विशेष लेक्चर्स के माध्यम से अंदरूनी परिवर्तन की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ साझा की। ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार धरती को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है मन को शांति, करुणा और सादगी से भर देना।
One more. नौ नवंबर को ब्रह्मा कुमारी सोनीपत रिट्रीट सेंटर में उत्साह और उमंग से भरे वातावरण में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुए। डिवाइन विजडम आर्ट गैलरी का उद्घाटन और प्रभु समर्पण समारोह। इस पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी ज्वाइंट चीफ आदरणीय सुदेश दीदी जी और हरियाणा विधानसभा के विधायक श्री निखिल मदान जी ने संयुक्त रूप से आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बीके लक्ष्मी बहन ने बताया कि सोनीपत एक शिक्षा केंद्र होने के कारण यह गैलरी युवाओं और परिवारों में चरित्र मूल्यों और दिव्यता की प्रेरणा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। विधायक श्री निखिल मदान ने गैलरी की सराहना करते हुए कहा कि इसका संदेश स्वर्ग में एक सीट खाली है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक उत्थान की प्रेरणा देता है। जो स्वर्ग का रास्ता, उधर एक कुर्सी रखी है, ये कुर्सी आज भी खाली है, वहां पर लिखा है स्वर्ग की कुर्सी आज भी खाली है। तो मैंने दीदी से पूछा कि दीदी इसका मतलब, दीदी ने बोला भी जो स्वर्ग में जाना चाहता है ये कुर्सी उसके लिए रखी है। तो ऐसा विजडम आर्ट गैलरी जिससे आपको इतनी प्रेरणा और अपना जीवन के अंदर इतना बदलाव करने के लिए आपको सीख मिलती हो, ऐसा सेंटर हमारे सोनीपत में स्थापित हुआ तो मैं ये सौभाग्य मानता हूँ कि हमारा सौभाग्य है। कार्यक्रम का दूसरा और मुख्य भाग था 12 ब्रह्मा कुमारी कन्याओं का प्रभु समर्पण समारोह। ये कन्याएं शिक्षित और संपन्न परिवारों से हैं जिन्होंने स्वेच्छा से ईश्वरीय सेवा के लिए अपने जीवन का समर्पण किया। सुदेश दीदी ने कहा कि इन कन्याओं ने अमर साजन शिव को जीवन साथी चुना है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने बताया कि यह जीवन त्याग का नहीं बल्कि प्राप्ति और आनंद का मार्ग है। कन्याओं ने शिव के ज्योतिर्लिंगम स्वरूप को वरमाला पहनाकर पवित्र जीवन की प्रतिज्ञा ली और उनके माता पिता ने स्वीकृति पत्र पढ़ा। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी ने कन्याओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने ईश्वर को साजन, पिता और सखा रूप में स्वीकार कर सच्चा सुख पा लिया है। हमारे कुल का उद्धार करने वाली कन्या देवी हमारे घर में आई है, शक्ति हमारे घर में आई है, बेटी नहीं आई है। ये तो अनेकों को मुक्त करने वाली मुक्तेश्वरी आई है। ये तो विश्व में विश्व कल्याण करने वाली शिव शक्ति आई है। इसलिए माँ बाप को भी खुशी है। पर ये एक आश्चर्य की बात नवों को लगती है कि ऐसे कैसे होगा, जीवन कैसे ऐसे चलेगा। परंतु मैं आपको विश्वास क्या दिलाऊं, प्रैक्टिकल अपने अनुभव से सुनाती हूँ। मुझे 68 इयर्स हो गए हैं ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। कोई एक सेकंड भी मेरे जीवन में ऐसा नहीं आया जो मुझे संकल्प आया हो कि ये मैंने रॉन्ग पाथ लिया है। समारोह में उपस्थित सभी भाई बहनों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ और आध्यात्मिक बनाने का संकल्प लिया। हाल ही में वाराणसी सर्किट हाउस में असम के माननीय राज्यपाल एवं मणिपुर राज्य के प्रभारी श्री लक्ष्मण आचार्य जी का आगमन हुआ। इस मौके पर भदोही की प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी बहन ने उनसे खास मुलाकात की और ईश्वरीय ज्ञान और सेवाओं पर सार्थक चर्चा हुई। भाजपा युवा मोर्चा काशी के अध्यक्ष श्री रत्नेश पांडे सहित अनेक गणमान्य नेता भी इस मौके पर उपस्थित रहे। सभी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा समाज में आध्यात्मिक जागृति और नैतिक मूल्यों के प्रसार हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा भविष्य में सहयोग का आश्वासन दिया। भुवनेश्वर स्थित सम नर्सिंग कॉलेज SAO यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअलिटी नर्सिंग द पाथ टू होलिस्टिक केयर विषय पर एक प्रेरणादायक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में GNM, BSc,
PBBSc और MASc प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी बहन मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित रही। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी इन नर्सिंग विषय पर PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सिंग केवल सेवा नहीं बल्कि आत्मिक भाव से जुड़ा एक पवित्र कर्म है। उन्होंने कहा कि हमें कर्म के बीज को क्रियान्वित करने की चिंता होनी चाहिए, जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। उन्होंने न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण देते हुए कहा कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही कर्म दर्शन का मूल है। इसलिए हर नर्स को अपने कार्य में सकारात्मकता, करुणा और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। How the seed of karma to be planted. जैसा बोओगे, आज we will be able to plant. Similarly, we can get the fruits of the karma. And for that, another principle, Newton's third law, also supports karma philosophy, that is, every action has equal and opposite reaction. कार्यक्रम के अंत में BK दुर्गेश नंदिनी बहन ने उपस्थित छात्रों और प्रोफेसर्स को गाइडेड मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा गहन शांति और आत्म सशक्तिकरण का अनुभव कराया। कार्यक्रम में नर्सिंग छात्रों को सेवा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। आज मैम का सेशन बहुत अच्छा था। बाय स्पिरिचुअली वी आर कनेक्टेड एंड स्टूडेंट्स आल्सो मोस्ट कनेक्टेड इन दिस बॉडी माइंड स्पिरिट आल्सो, एंड बहुत अच्छा लगा मैम का लास्ट पार्ट बहुत अच्छा था जो मैम मेडिटेशन के लिए बोली, तो वो बहुत अच्छा लगा। एंड वी आर फील ब्लेस्ड कि मैम को आज ये सब मैम से थ्रू से हम लोगों को सुनना मिला। नई दिल्ली लोधी रोड स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में मैपिंग माय माइंड विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मध्यम स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में BK पीयूष भाई ने कहा कि हमारा मन अनेक विचारों कार्यों में उलझा रहता है। मैपिंग माय माइंड का अर्थ है एक समय पर एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। इससे कार्य क्षमता बढ़ती है, तनाव घटता है और मन प्रसन्न रहता है। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरजा बहन ने कहा कि हर कार्य से पहले मन को प्रेम, पवित्रता और सकारात्मकता से भरें। क्रोध और आवेश हमारी कमजोरियां हैं, जिन पर आत्म साक्षात्कार से विजय पाई जा सकती है। Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Today I do not have health. I was invited by AIIMS New Delhi to deliver a series of 10 lectures. I did it for the residents, for nurses, for paramedical staff. At the end, I was told that youth of 20 years age, they come to us with heart problems. 25 years with diabetes. 30 years with blood pressure up and down. Why this is happening? Because there is no routine of mind. No time to sleep, no time to get up. कुछ टाइम है ही नहीं, फिर सारा टाइम कहाँ जा रहा है? तो I am into Brahma Kumaris for past 40 years, and friends, what I've learned here, रात को 10 माने बस, सवेरे 4 माने तैयार। जो कार्य आप प्रेम से कर सकते हैं, वो आपको फायदा है। यही आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। अभी तो आप शुरुआत है आपका, लेकिन अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। BK डॉक्टर CH मूर्ति, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक, ने कहा कि कार्य आरंभ करने से पूर्व कुछ क्षण मन को शांत करें, कम सोचें, अधिक सशक्त बने। अंत में प्रतिभागियों को राजयोग ध्यान की गहन अनुभूति कराई गई। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।